गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले सभी टॉपिक जो पहले चैप्टर से रिजेंबल करते थे उसको मैंने कवर किया हुआ है और मुझे विश्वास है कि आप सबको समझ में भी आया होगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको हमेशा हर वीडियो का लिंक मिलता रहे। डियर फ्रेंड, देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, रिएक्शन के टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं टोटल? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, सो आई होप you all student have been complete your types of reaction and displacement reaction mean. Let us start our topic. Displacement reaction means when a less reactive element displaced by a more reactive elements anywhere, that is known as displacement. And if it is occur in chemical reaction, it is known as displacement reaction. Yes, dear friend. I write down here that when a less reactive element or atom is displaced by more reactive element, this process is known as displacement reaction. Yes, yes. Displacement reaction means, suppose we have AB plus CE giving us AC plus B. अब आप यहाँ देखेंगे कि A भी एक कंपाउंड है, C एक एलिमेंट है या एटम है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो C B को डिस्प्लेस कर देता है। फिर से ध्यान से समझिए यहाँ बच्चे, यू हैव टू कंसंट्रेट हियर दैट AB is a compound, chemical compound. C may be an element or atom. You are looking at C is displaced the B, right? It means that C is more reactive as compared B. C ज्यादा reactive है as compare B के, इसीलिए C B को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। This reaction is known as displacement reaction. This is common example. Dear student, you have to write it that this is common example. Okay, and now I am going to write you a better example, right? Okay, example like when copper sulfate, write an example, when copper sulfate, it means CuSO4, react with zinc,
when copper sulfate react with zinc, it forms, because zinc is more reactive as compared copper. Both are metal. Zinc and copper are the metal. When zinc react with copper sulfate, it forms zinc sulfate ZnSO4 plus Cu. कॉपर को अलग कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देगा बेटा, ध्यान समझिएगा आप लोग। जब जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर कॉपर के, इसीलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर का जगह ले लेगा। ये एग्जाम्पल है, अभी आपने देखा फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल एंड नाउ second example is that when when silver chloride AgCl, silver chloride react with, when silver chloride react with potassium, when silver chloride react with potassium, it forms potassium chloride plus silver. Potassium chloride plus silver. Now we have to balance this equation. So right here 2 and 2 and 2, right? So in left hand side 2 atom of silver, also right hand side 2 atom of silver, left hand side 2 atom of chlorine, also in right hand side 2 atom of chlorine, potassium is 2 atom and also potassium is 2 atom. It means now this equation has been balanced. Okay, so dear student, I hope आप सबको समझ आया होगा बहुत अच्छी तरीके से कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। मैंने बताया भी आप लोगों को कि when a less reactive element or atom is displaced by more reactive element, this process is known as displacement reaction. इन कॉमन एग्जाम्पल में मैंने बताया कि ए भी एक केमिकल कंपाउंड है, सी मेटल हो सकता है या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो सी बी को डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब ये है कि सी ज्यादा रिएक्टिव है और बी कम रिएक्टिव है। ओके डियर स्टूडेंट, सो आई होप आप सब इसे नोट किए होंगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड write it soon. Now I am going to teach you next topic. Our next topic is what is electrochemical series. Dear student, electrochemical series का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत बड़ा रोल है, जिसे मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, बताया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था, बट कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, तो आज इस टॉपिक पे फिर से एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसे आप क्लियर रखेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, dear student, electrochemical series, it means series means steady. Electrochemical series, it means रसायन के वे पदार्थ, वे रसायन जिनकी इलेक्ट्रिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपने आप में जो रसायन ज्यादा रखते हैं, उनकी श्रेणी को, उनके नंबर को एक फॉर्म में, एक रूप में लिखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं वे सभी धातु जिनमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, उनके बढ़ते हुए क्रम को अथवा घटते हुए क्रम को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले पोटेशियम का स्थान होता है। ओके डियर स्टूडेंट,
पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, आयरन, प्लैटिनम, ये सभी मेटल्स हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होती है, उसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। इट मीन्स ये सबसे ऊपर है। इसकी इलेक्ट्रिविटी, रिएक्टिविटी हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज ये सबसे नीचे है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है रिएक्टेंट। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसी से हम पता कर पाते हैं कि विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व, कौन से तत्व से ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्शन। सो ये मैंने आपको एक सीरीज दी है, इसको याद करिए। इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद करते हैं। टोटल 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 3, 13, 2, 15 एलिमेंट है, 15 मेटल है डियर। 15 मेटल के नाम और क्रम बाय क्रम याद रखना है कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो चलिए, जैसा मैंने लिखा हुआ उसी तरीके से इसमें याद करने का तरीका भी बना देते हैं। ये है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या है, के है, आप जानते ही हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं केदार। क्या पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, केदार। इसे हम याद करने के लिए पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है कि इसको हम रियल में पढ़ेंगे। इसको याद करने के लिए क्या पढ़ेंगे, केदार। सोडियम से पढ़ेंगे ना, कैल्शियम से पढ़ेंगे का, केदारनाथ का। मैग्नीशियम से पढ़ेंगे माली, एल्यूमिनियम से पढ़ेंगे आलू, जिंक से पढ़ेंगे जरा, Fe से पढ़ेंगे फीके, Sn से पढ़ेंगे सड़े, Pb से पढ़ेंगे लेड है चुकी इसलिए पकाता, पकाता। हाइड्रोजन H से पढ़ेंगे है। तो मैंने क्या लिखा, केदारनाथ का माली, आलू जरा, फीके सड़े पकाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके डियर स्टूडेंट, कॉपर से पढ़ेंगे क्यूट, कॉपर से क्या पढ़ेंगे, क्यूट। मरकरी Hg से पढ़ेंगे हाजी, ओके, हाजी। Ag से इतनी सिल्वर, इसे पढ़ेंगे आएगा, आएगा। Au से पढ़ेंगे और Pt से पढ़ेंगे पीतेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप हमारे साथ एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि याद हो ही जाना है। केदारनाथ का माली, आलू जरा, फीके सड़े पकाता है, क्यूट हाजी आएगा और पीटेगा, क्यूट हाजी आएगा और पीटेगा। एक बार फिर से, केदारनाथ का माली, आलू जरा, फीके सड़े पकाता है, क्यूट हाजी आएगा और पीटेगा। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आप सबको समझ आया होगा। इसे नोट करिए और इसको कभी भी नहीं भूलना है। 10वीं में भी काम आएगा, 12वीं में भी काम आएगा, इवन इन फ्यूचर कहीं भी किसी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमको बताना है इसी बेसिस पे और भी एग्जाम्पल, ताकि आपको और अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद मैग्नीशियम, व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद मैग्नीशियम। अभी आपने देखा कॉपर और मैग्नीशियम बोथ आर मेटल, copper and magnesium both are metal. So now we have to clear that is copper less reactive as compared magnesium, or magnesium is less reactive as compared copper.
इसको जानने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, यस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होना चाहिए। तो आपने देखा था कि मैग्नीशियम जो है उसको हम लोगों ने पढ़ा था माली, तो ये ऊपर था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये ऊपर था और कॉपर कहाँ था, नीचे था। इसलिए जो ऊपर था वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, और जो नीचे था वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो क्या करेगा, मैग्नीशियम कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यस राइट। सो यहाँ पे क्या बनने वाला है, नेक्स्ट कंपाउंड मैग्नीशियम सल्फाइड MgSO4 प्लस Cu प्लस क्या बनेगा, Cu। इट मीन्स मैग्नीशियम कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ओके, so this was third example and now we have to learn double displacement reaction। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, बिकॉज यू नो डियर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप, it was single displacement reaction and now we are going to learn double displacement reaction। what is double displacement reaction? okay, so I hope आप सबको समझ आया होगा और आप लोगों ने नोट भी किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। so write our topic that is double displacement reaction। double displacement reaction। okay, so double displacement reaction means first we have to understand that what is double displacement reaction। okay dear students, so now we have to those reaction in which now we have to learn those reaction in which those reaction in which dear student डिस्प्लेसमेंट मीन्स आप जानते हैं कि व्हाट इज मीन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, a less reactive metal or element or compound displace the okay more reactive element or metal displace the less reactive element। okay dear student, so now we are going to learn double displacement reaction। so those reaction means वे अभिक्रियाएं जिसमें इन विच जिसमें टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय इन विच टू कंपाउंड react by and exchanging okay dear student and exchange of ions and exchange of ions exchange of ions okay to form two new compounds are called to form two new compounds are called double displacement reaction। double displacement reaction okay, in example we have suppose two compound means one is AB and second is another is CD। AB plus CD react together, AB and CD both are compound, chemical compound, when AB and CD react together it forms AC plus BD। Dear student, you are watching here that
AB and CD both are two compounds, both are two chemical compounds. When AB react with CD, it forms AC plus BD. It means C is going to exchange, C and B both are going to exchange their places, both are going to exchange their ions. Okay, so this process is known as double displacement reaction, because in this reaction two elements are going to exchange their ions. That's why it is known as double displacement reaction. Okay, dear student, example we have, suppose when silver nitrate react with sodium chloride. Dear student, when silver nitrate AgNO3 silver nitrate react with sodium chloride, it forms, dear student, it forms silver chloride plus sodium nitrate, NaNO3. Okay, dear student, when silver nitrate react with NaCl, it forms AgCl plus NaNO3. आपने देखा कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराने पर नाइट्रेट and chlorine both are going to exchange their places and it forms silver chloride plus sodium nitrate reaction. And you know the very important and when barium chloride react with sodium sulfate, when barium chloride react with sodium sulfate, it forms barium sulfate plus sodium chloride. Okay, dear students, it forms barium sulfate plus sodium chloride. Now we have to balance this equation. Okay, now I have right here 2. So this equation has been balanced now. Okay, dear students, this was our examples of double displacement reaction. So I hope आप सभी बच्चों को समझ आया होगा अच्छी तरीके से, और I think it is more than sufficient for today. Be aware and be concentrate and try to learn each and every topic. जो चीज समझना है उसे कमेंट जरूर करें डियर फ्रेंड. ओके, थैंक यू.